subjects become difficult, right? So like for a science students, he doesn't know the basic of economics. So how he will start directly from unit 1 or unit 2, right? Similarly, from a commerce students, right? Or maybe for a humanities student. For a humanities student, it will be difficult to cope with business mathematics or business statistics. Maybe some students have already studied microeconomics or macroeconomics, but not all the subjects are the same. So there are some subjects which need some foundation, right? Some of the theoretical subjects are there which doesn't need any kind of a foundation, like principle of management or business organization or systems, right? So these are all theoretical paper. So such papers will not need your foundation, because you can study whatever teacher has told you or taught you, right? Or even referring to books. But some of the subjects are there that is mandatory for a strong foundation, right? So that some of the terms are difficult to understand, like for example, microeconomics, right? So if your teachers start directly from the unit 1 and start with all the theories, it will be like हम कहाँ पे आ गए, right? So for that, it is important to understand the basic terms, the basic terminology, like for example, what is demand, what is need, right? If we are talking about a theory of marginal utility, but why to go directly to marginal utility? But maybe for some students from commerce, it will be easier for them. But for science and humanities student, they will be like, what is marginal utility, right? So for them, it is the basic is to understand the what is utility, what is uses, why people buy goods or services, why they make payment, and what is actually economics is all about, right? Similarly, if we are going to study accounts, right? What is accounts is all about? So like if we are taught that golden rule of accounts, like debit, credit, first you have to understand what is debit, what is credit, right? What are the all contents of a balance sheet or any kind of financial accounting, right? So why all these basic topics need to be discussed before starting of our syllabus, right? Because now we are going through our orientation program. Orientation program means kind of introduction, and because before starting of our regular classes, we also need some introduction to some of these subjects that needs a base or that needs a foundation. So today we will be having our accounting bridge course. It will be taken by Mr. Rakesh Chawla sir. I don't know he has joined or not. I'm just checking him. Okay, just give me 1 minute. Rakesh sir. Yes, ma'am. Have you joined? Yes, ma'am. I am here. राकेश सर आपने ज्वाइन किया है. Okay sir, I am making you the presenter. Okay, ma'am. So please welcome Rakesh Chawla sir. He might be teaching you one of the section. Just a minute, sir. So sir, I am making you the presenter. So now you can share any kind of content, PPT or anything if you like. Okay, thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. Yes, I'm leaving, sir. Okay, thank you, ma'am. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. आप लोग मेरी क्लास में अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, तभी मज़ा आएगा आपको भी क्लास में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम राकेश चावला. I am teaching since last 12 years, but associated with your institute from last 1 year. This is my second year. Any other thing you want to know about me, you can ask. सर कैसे हो आप?
मैं बढ़िया हूँ भाई। स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्वेश्चन। डिसिप्लिन्ड हो, पसंद करता हूँ कि डिसिप्लिन में रहें लोग, लेकिन टीचिंग एंजॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिले क्लास में। आप हमें अकाउंट्स पढ़ाओगे? हाँ, अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। 2 सेक्शन मेरे पास हैं, अभी रिमेंबर नहीं है मुझे कौन सा सेक्शन है, बट 2 सेक्शंस आर। और कुछ पूछना चाहेगा कोई या आगे चलें, क्लास स्टार्ट करें? बताओ कैसे करना है। नो सर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे बारे में, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ पीपीटी काइंड ऑफ गाय कि पीपीटी आपको मैं दिखा दूंगा और आपने सुन लिया 1 घंटा बैठ के और आपको समझ में आ गया। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं हूँ, मेरे पास कॉर्पोरेट का लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास एकेडमिक का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आई एम काइंड ऑफ अ पेन पेपर गाय, और उसी में मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा ख्याल है आपको भी वो पसंद आएगा। आज की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि आप अगर कहेंगे आगे, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस अभी और होंगी ब्रिज कोर्सेज की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वैसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको आज का नहीं पसंद आएगा तो हम लोग फिर पीपीटी और समथिंग एल्स व्हाटएवर यू सजेस्ट इसमें मूव कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना यार, दिस ब्रिज कोर्स इज नॉट ओनली फॉर द नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। बहुत बारी बच्चों को लगता है सर हम नॉन कॉमर्स के हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एक काम करोगे जरा, एक बार हैंड रेस करोगे जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। ओके, 4 लोग, 9, ठीक है, 10। ओके, the total out of 100 we have 112, we have 10 people who are non-commerce background. Fine. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हैंड डाउन कर सकते हैं आप लोग। ये जो एक मिथ बना रखा है ना कि सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और कॉमर्स वालों को चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, नॉन कॉमर्स वालों को नहीं आएंगी, ये एक मिथ है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड दे आर वेरी गुड एट टीचिंग टैक्सेशन, टीचिंग अकाउंटेंसी, despite of being from the engineering or some other science background. They have done their graduation. You have done only 12, but they have completed their graduation in science background, and then they have shifted to the commerce and they excel in all those things. तो ये एक मिथ है कि सर साइंस वालों को कॉमर्स नहीं समझ में आ सकती। कॉमर्स सबको समझ में आ सकती है, बहुत ईजी है। सिर्फ हाँ एक एडवांटेज ज़रूर है यार, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि देयर इज़ वन एडवांटेज। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो 2 साल की मेहनत का थोड़ा सा एडवांटेज तो उनको मिलेगा, ये तो ऑब्वियस। लेकिन कॉमर्स वाले सब बच्चों को अकाउंट समझ में आता है ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स ली है, अकाउंट्स पढ़ा है, and they have scored quite good marks in accountancy subject, because I'm teaching accountancy, so I'm taking accountancy as an example, but still they do not understand what is accounting is. The reason is when we are studying a particular subject, instead of understanding that, हम लोग क्या करते हैं उसको सिर्फ एक तरह से याद कर लेते हैं यार। जैसे अभी मैं आपको अकाउंट्स जो पढ़ाऊंगा तो कुछ एंट्रीज आएंगी, तो कुछ एंट्रीज होती हैं हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, बस याद कर लेते हैं, सर ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, दैट्स इट। क्यों होगा? उस क्यों का आंसर किसी को नहीं पता। जब आपको उस क्यों का, उस वाई का रीजन पता लग जाएगा, वाई दिस हैज टू बी डन, वाई दिस एंट्री हैज टू बी गोन इनटू दिस अकाउंट, तब आपको अकाउंटेंसी आ जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है।
तो आई सजेस्ट कि आप अकाउंटेंसी को पढ़ें, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अकाउंटेंसी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वो पता है तो आप आगे चल पाओगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट। My screen is visible. Yes, sir. I have written something. Let us tell me what has been written. What is written on the screen? Accounting. Accounting. फाइन, इसका मतलब आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं जरा अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन अकाउंट्स के ऊपर आने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी है। बेसिक चीजें क्या हैं? पहली बात मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? अकाउंट किसको कहते हैं? Sir, account is a record of financial transaction. बताइए। Sir, account is a record of a financial transaction. रिकॉर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि यार जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की, कुछ लेन देन किया, हिंदी में बोलते हैं लेन देन, उसका रिकॉर्ड रखना। लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि फिर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनसे अभी पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, तो फिर जर्नल क्या हुआ? इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कुछ और बताओ अकाउंट की डेफिनेशन। क्या बात है यार, 112 बच्चे हो क्लास में, सब सो गए? अकाउंट की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ भाई, सिंपल। Sir, it is a record of expenditure and receipts. तो वो तो जर्नल भी हो जाएगा, रिकॉर्ड तो जर्नल भी हो जाता है। Sir, accounts is a system that tracks the financial activities of assets, liabilities, and expenses. तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। अगर सिस्टम की बात करते हो तो फिर तो अकाउंटिंग हो गया। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है भाई? Sir, account एक रिकॉर्ड अकाउंटिंग सिस्टम में है। तो वो तो जर्नल भी है भाई, फिर अकाउंट और जर्नल तो सेम हो गए। ओके, अकाउंट इज सिंपली अ टेबुलर फॉर्म, अ टी फॉर्म स्टेटमेंट। मतलब हम लोग एक ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं टी फॉर्म, इसे कहा जाता है अकाउंट। ये है पहली बेसिक डेफिनेशन। कोई भी टी फॉर्म स्टेटमेंट हमने बनाई, अब ये इस स्टेटमेंट को बनाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? पहली चीज हम लोग लिखते हैं डेट, दूसरी चीज लिखते हैं पर्टिकुलर्स, तीसरी चीज लिखते हैं जेएफ। अब ये जेएफ क्या है अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बीच में लेके आ रहा हूं अभी, इसलिए समझाने के लिए कुछ जेएफ अभी छोड़ देते हैं। और चौथी चीज होती है अमाउंट। ठीक है भाई, इसी तरह से जैसे सेम आपने यहां पर बनाया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, वैसे ही राइट हैंड साइड पार्ट बनता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ओके, ये हो गया हमारा अकाउंट, सिंपल सिंपल। अब
दूसरी चीज, ये कॉमर्स वालों से ही क्वेश्चन है भाई, जो लोग कहते हैं सर हम 2 साल से पढ़ के आए हैं। सो टेल मी व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। ये सिंपल सिंपल चीजों के मीनिंग बता दीजिए। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? So debit what comes in, credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो यार गोल्डन रूल्स कहलाते हैं, जो अभी रूपम मैम बता रही थी, अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ये तो वो रूल बता दिया आपने, मैंने तो आपसे मीनिंग पूछा है। Debit is left side of an account and credit is right side of an account. वेरी गुड आंसर, बहुत सर कम बच्चे- डेबिट मतलब देना, क्रेडिट मतलब लेना। ये भी कह सकते हो, बट प्रॉपर आंसर इज, क्योंकि हम लोग अभी अकाउंट्स बेसिक पढ़ रहे हैं, डेबिट मींस इट रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। बस डेबिट और क्रेडिट का इतना ही मीनिंग लेके चलो। बाकी क्रेडिट का मतलब फेथ है, इसी से क्रेडिटर वर्ड बना है, वो बात अलग हो गई। बट डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मींस राइट हैंड साइड। ओके जी, तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। रूल्स की बात बाद में करेंगे यार, अभी रूल्स की बात नहीं कर रहा भाई। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना यार, एसेट। एसेट क्या होती है? व्हाट इज एसेट? The thing which सर जिससे फायदा होता है, which provides us benefit in the future. Sir, anything of value which provides income to the business. बिल्कुल ठीक आंसर है सर। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे हम बेचें तो हमें पैसे मिलेंगे, जिसे हम बेचकर पैसे ले सकते हैं। एक बात तो हो गई ये। दूसरा सर, Money generate. इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। जिस चीज से हमें पैसे मिल जाएं, यानी अगर किसी बंदे से मुझे पैसे लेने हैं, किसी पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं, देन दैट इज आल्सो कॉल्ड एसेट। यहां तक क्लियर है? जिस चीज को बेचूं मुझे पैसे मिल जाए, जिस व्यक्ति से, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस पर्सन से, किसी से भी अगर मुझे पैसे मिल सकते हैं तो वो भी मेरी एसेट कहलाएगी। दूसरी चीज होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। बिल्कुल, ऑब्लिगेशन मींस ऑब्लिगेशन टू पे। बिल्कुल, ऑब्लिगेशन टू पे मींस सर आई हैव टू पे द मनी whenever they want, whenever they raise the demand, obligation to pay. Okay जी, so जिसको मुझे पैसे देने हैं, सिंपल सिंपल वर्डों में मैं अगर बात करूं तो उधारी। उधारी। अब एक छोटी सी बात और कि ये बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। मींस मान लो आपने कोई एक बच्चा, अपना नाम बोलो फटाफट। साहिल जोशी। साहिल। साहिल ने बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी दुकान खोली और दुकान का नाम रखा साहिल ट्रेडर्स। ठीक है, इसने नाम रखा साहिल ट्रेडर्स और इसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब जब एंट्री होगी, एंट्री किसके अकाउंट्स में होगी, किसकी बुक्स में होगी? एंट्री कौन करेगा? साहिल ट्रेडर एंट्री करेगा, यानी कि बुक्स जो होंगी वो साहिल ट्रेडर की होंगी। इस बुक में एंट्री तो साहिल ही करेगा, क्योंकि साहिल ट्रेडर अपने आप में तो कुछ है नहीं। दुकान ऐसा तो होगा नहीं कि रात को आदमी में बदल गई और एंट्री की और सुबह उठ के वापस दुकान बन गई। एंट्रीज तो साहिल को ही करनी पड़ेंगी यार। लेकिन साहिल इस तरह से एंट्री करेगा, ये सोच के करेगा कि मैं साहिल नहीं हूं, मैं साहिल ट्रेडर हूं। यानी कि साहिल ट्रेडर
और साहिल दोनों अलग अलग हैं। ये एक बड़ी बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। कल को अगर साहिल ट्रेडर में कुछ पैसा लगाता है, मान लो साहिल ने दुकान में 1 लाख रुपए लगाए, और प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को सारे। अगर कल को साहिल ने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, तो वो माना जाएगा कि साहिल ने बिजनेस को पैसा उधार दिया है। बस साहिल या बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, बस ये ध्यान रखना यार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मेन चीज है। यहां तक मैं क्लियर हूं 3 चीजों को लेकर। एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है। साहिल ट्रेडर बिजनेस है, साहिल बिजनेसमैन है। यहां तक सभी को क्लियर है? जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूं यार। यस सर। अब जरा आते हैं नीचे। मान लो साहिल ने बिजनेस शुरू किया, साहिल हैज स्टार्टेड बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा ये बताओ, साहिल को क्या करना होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हाँ, कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। कैपिटल बाद में वर्ड यूज करेंगे। फिलहाल तो सीधी बात करते हैं, साहिल को कुछ पैसे या कुछ मनी इन्वेस्ट करनी है। सर मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड। तो कितने पैसे इन्वेस्ट करवाएं भाई, साहिल से बताओ। 150 रुपये। 150 रुपये? अरे भाई कौन से जमाने में जी रहे हैं? Sir, 1 lakh. 20,000 rupees. 20,000. 20,000 Small business. ठीक है। अब साहिल 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। अब जरा एक बात बताओ, पैसे किसने दिए थे? पैसे किसने दिए? साहिल ने। साहिल ने। और पैसे अपनी मिले फर्म किसको? को। अपनी फर्म को, यानी कि साहिल साहिल ट्रेडर को। ट्रेडर्स को। ठीक है, पैसे इसको मिल गए। तो साहिल ट्रेडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेगा। अब जरा एक चीज का जवाब दो, साहिल ट्रेडर के पास 20,000 रुपए कैश आ गए। ये उसकी नॉन कॉमर्स वाले जवाब देना यार, कॉमर्स वाले नहीं। साहिल ट्रेडर के पास 20,000 रुपए कैश आ गए, ये उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है या नहीं है? 20,000 रुपए, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। चाहो तो मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ। एसेट की डेफिनेशन क्या है? जहां से मुझे पैसे मिले, जिससे पैसे मिले, या मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं, जो पैसे मेरे पास हैं, बिजनेस के पास है। सर लायबिलिटी। सर लायबिलिटी होगी बिजनेस के लिए। लायबिलिटी ट्रेडर्स के लिए, साहिल ट्रेडर्स के लिए नहीं। अभी मैं खाली 20,000 की बात कर रहा हूँ बस। मेरे पास 20,000 रुपए है, कहाँ से है वो भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो मेरे पास 20,000 रुपए हैं। एसेट होगा। एसेट। अगर मैं खाली 20,000 की बात करूं तो सर ये मेरे पास एसेट हो गया। लेकिन ये अब बात करो 20,000 किससे मिले? 20,000 किससे मिले? साहिल से. साहिल से। साहिल अलग है, साहिल ट्रेडर अलग है। Yes. Yes, sir. तो एक तरह से साहिल ट्रेडर ने साहिल को 20,000 रुपए देने भी हैं। मतलब एक तो उसके पास पैसे पड़े हुए हैं जो एसेट है, लेकिन 20,000 रुपए उसने उसके वापस भी करने हैं जब मांगेगा साहिल, तो ये उसके लिए लायबिलिटी भी हो गई। दोनों चीजें हो गई यहां तक या नहीं? पहले ये बताओ, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों चीजें आ गई। अब एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटेंसी के अंदर लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट।
ये एक ऐसी चीज है जो अकाउंट्स में हमेशा ट्रू है। खुशी दलाल म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। Liability is always equal to asset. This is the one basic rule जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो मेरी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी 20,000 रुपए थी और एसेट भी कितने थी? 20,000 रुपए। ये एक चीज तक मैं क्लियर हूं, सिर्फ पहली बेसिक चीज तक। साहिल ने, इसमें कैपिटल भी तो आती है। हाँ कैपिटल आती है, कैपिटल की बात अभी 2 मिनट में करूंगा यार, बट पहले यहाँ तक देखो कि साहिल ट्रेडर ने साहिल को 20,000 रुपए देने हैं और साहिल ट्रेडर के पास 20,000 रुपए कैश पड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ मेरी लायबिलिटी 20,000 की है, एसेट 20,000 की है। इस एक बात पे हाँ करते हो तो आगे चलते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes. अब एक काम और करते हैं, साहिल ट्रेडर को और पैसे की जरूरत पड़ी, साहिल ने मना कर दिया, साहिल ट्रेडर गया बैंक के पास और उससे भी 20,000 रुपए ले आया, यानी कि बिजनेस में। एक्सक्यूज मी सर। यस, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप प्लीज फिर से बता सकते हैं लायबिलिटी और एसेट का मीनिंग? लायबिलिटी मींस बिजनेस ने किसी के कुछ पैसे देने हैं, बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं। अब किसके देने हैं वो भी मैं बात नहीं कर रहा 2 मिनट के लिए, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला कि बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं या बिजनेस हैज द ऑब्लिगेशन टू पे। एसेट मतलब जहां से मुझे पैसे मिले, अब उस चीज को बेचकर पैसे मिले, मेरे पास पैसे पड़े हैं या मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तीनों चीजों को एसेट कहा जाता है। साहिल ट्रेडर को 20,000 रुपए दिए, साहिल ट्रेडर के पास 20,000 रुपए आए। ये जो साहिल ट्रेडर के पास 20,000 रुपए आए, ये आए एसेट, क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हैं। आई एम अ साहिल ट्रेडर, मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूं मैं साहिल ट्रेडर हूं और साहिल को मुझे पैसे देने भी हैं क्योंकि उसने मुझे उधार दिए हैं, उसने इस उम्मीद से लगाए हैं कि उसको ये पैसा वापस मिल जाएगा, तो ये एक तरह से उधार है, मैंने उधार लिया है। आई एम साहिल ट्रेडर। 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो कि उसका जो बिजनेस था वो जिंदा हो गया, जिंदा होकर मेरी फॉर्म में आ गया, तो अब उसने मुझे पैसे दिए, तो ठीक है, मैंने कहा 20,000 रुपए मुझे देने हैं और 20,000 रुपए मेरे पास कैश में। ये एक पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, अब मुझे पैसे की जरूरत और पड़ी, मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक से भी पैसे ले लिए, लेकिन बैंक ने मुझे कैश में नहीं दिया। साहिल ने तो भला आदमी था साहिल, उसने मुझे कैश में दे दिया। बैंक हैज ट्रांसफर्ड टू माय बैंक अकाउंट। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। माय क्वेश्चन इज, मेरे पास अब कितने पैसे हो गए? $20,000 साहिल से लिए थे, 20,000 बैंक से लिए थे, टोटल मनी कितनी हो गई मेरे पास? 40,000. 40,000। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यार 20,000 प्लस 20,000, ठीक है ना? एक ही बात है यार, 20,000 उससे लिए, 20,000 उससे लिए, और मुझे पैसे कितने वापस देने हैं? ये भी उधार ही है, पैसे वापस कितने करने हैं? 40,000. 40,000। मैं फिर से लिख सकता हूँ 20,000 प्लस 20,000। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ये चीज ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। ये वाले 20,000 कौन से हैं जो मेरे पास कैश पड़ा है? ये वाले 20,000 कौन से हैं जो बैंक में गए? अब मुझे तो पता नहीं लगेगा ना यार ऐसे देख के कि कौन से कैश है कौन से बैंक है, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया सर ये है कैश और ये है बैंक।
ठीक है, राइट हैंड साइड क्लियर। मैंने ऊपर लिख दिया कैश है, ये बैंक है। इसके बाद मैं लायबिलिटी साइड पे गया, मैंने कहा सर ये वाले पैसे मैंने देने थे साहिल के और ये वाले देने हैं बैंक के, तो मैंने इस पे लिख दिया बैंक। ठीक है, बात आई सर ये साहिल के हैं, मैंने कहा एक मिनट यार, एक बात बताओ, साहिल बैंक का ओनर है, क्या मुझे उसका नाम लिखना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कैपिटल लिखेंगे। हाँ कैपिटल लिखेंगे। बिल्कुल, साहिल बिजनेस का ओनर है, मुझे उसे रिस्पेक्ट देनी है, मैं उसका नाम थोड़ा ना लिखूंगा कि हाँ भाई साहिल ने देना है या साहिल से पैसे लेने हैं, ऐसा नहीं लिखते हम, उसको लिखते हैं कैपिटल। यानी कि यार जो लायबिलिटी साइड होती है ये दो हिस्सों में बंटती है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया, जो लायबिलिटी होती है, जो बिजनेस ने पैसा देना है, वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला सर कैपिटल, जो ओनर का पैसा है। कैपिटल कोई भी बोले ना अगर मुझे कैपिटल, तो इसका मतलब सर जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ओनर का पैसा है ये वाला। और अगर मुझे कोई बोले लायबिलिटी, तो इसका मुझे मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सर लायबिलिटी जनरली जो हम यूज करते हैं ये आउटसाइडर लायबिलिटी की बात करते हैं, जो बाहर का बंदा है उसका पैसा जो हमें वापस करना है, जो हमें देना है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कई बारी, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटी मतलब जो बाहर वाले का पैसा देना है, कैपिटल मतलब जो ओनर का पैसा बिजनेस ने रिफंड करना है, इज इक्वल टू एसेट। यहां पर एसेट ही लिखा जाता है। अब जो एसेट होगी उसका नाम लिखते जाएंगे। क्लियर हुई यार यहां तक? यस सर। इस इक्वेशन को बोला जाता है विद लायबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां तक क्लियर? आगे चलें अकाउंटिंग इक्वेशन तक। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। पहली चीज, साहिल ने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो साहिल इन्वेस्टेड ₹20,000 इन कैश। ओके, दूसरा लिख लेते हैं, बिजनेस टेक अ लोन of ₹20,000 and money is in bank account, वो बैंक में है। तीसरी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, बिजनेस हैज ट्रांसफर्ड। अच्छा राइटिंग समझ में आ रही है ना यार मेरी? यस सर। has transferred Yes, sir. is 8,000 in बैंक। बिजनेस ने क्या किया, 8,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। चौथा, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 has been purchased। ओके जी। पांचवा, सैलरी ऑफ ₹1,000 has been paid goods। चलो सैलरी अभी छोड़ो, सैलरी का थोड़ा सा अकाउंट आगे आ जाएगा। गुड्स costing ₹5,000 has been purchased। सातवां, all goods sold
for rupees 7,000। ये 6 ट्रांजैक्शन समझ में आ रही? सिर्फ ट्रांजैक्शन। ठीक, अब जरा मुझे एक एक करके बताना। मैं प्रेफर करूंगा अगर नॉन कॉमर्स वाले बोलेंगे तो, कि मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कैसे होती जाएगी। मैं लिखूंगा कुछ नहीं, मतलब एक काम करता हूँ, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जगह स्पेस भी मिल जाएगा हमें। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये आप हमें एक्सप्लेन, बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए करा रहे हो या सिलेबस में भी है अकाउंटिंग इक्वेशन सब सिलेबस में है, बीबीए के? सब कुछ है सिलेबस में। ओके अकाउंटिंग, ओके सर, इंट्रोडक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट। थैंक यू सर। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं जा रहा है। ओके, वैसे इसका मेन पर्पस, ये सब चीजें आपको क्लास में दोबारा भी करवाई जाएंगी, और इन क्लासेस का पर्पस जो है वो है कि जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो थोड़ा सा इन टर्म्स से हैंडी हो जाए, उनको थोड़ा सा अलग से। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अब ध्यान से देखिएगा जरा, पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई? सर मेरे पास ओनर ने पैसा दिया, साहिल ने पैसा दिया, तो मेरे पास कैश आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल इज इक्वल टू कैश। कितना कैश आया? सर 20,000 कैपिटल आई और 20,000 का कैश आया। ये एक चीज क्लियर? पहले ये बोलो। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ये वाली जो अभी डिस्कस भी की थी। ये ध्यान आगे वाली तीन प्रोसेस इसी पे डिपेंड करेंगी। Second is business taken a loan of rupees 20,000 and money is in bank account, मतलब पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में आया। बताओ जी क्या होगा? पैसा कहां से आया है? बैंक से। बैंक से। तो मैंने लोन लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल प्लस बैंक लोन। बैंक से लोन लिया है। कितना लोन लिया? सर कैपिटल मेरे पास 20,000 थी, बैंक से मैंने लोन लिया है 20,000 का। ये पैसा गया कहाँ पे? सर ये पैसा गया बैंक में, तो मैंने इसमें लिख दिया प्लस बैंक। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, बिजनेस से ट्रांसफर किए हैं 8,000 रुपए बैंक में। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी इस केस में। मैंने 8,000 रुपए कैश से बैंक में ट्रांसफर कर दिए, क्या मैंने किसी से उधार लिया है? नो सर, सर बैंक और कैश से माइनस हो नो सर, कैश से माइनस हो जाएगा और बैंक में ऐड हो जाएगा। हाँ, सिर्फ ये हुआ कि सर कैश में से आपके, लेट अस सपोज ऐसा करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, माइनस हो गए आपके 8,000 और बैंक में प्लस हो गए 8,000। तो इसको कर देता हूँ मैं जरा 2 मिनट के लिए, इसको हटा देता हूँ, इक्वेशन आपको समझा दूंगा अभी। 20,000 इसमें प्लस हो गए थे और 20,000 इधर प्लस हो गए। चलो जी ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन है, मैंने फर्नीचर परचेज किया। मुझे ये बताओ क्या मैंने उधार लिया कुछ? नो सर, नो नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास कैश में से माइनस। हाँ, एसेट आ गई फर्नीचर की। अब पॉइंट आता है सर ये कैश में से थी या अकाउंट में से थी? कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा मान के चलना बैंक में से थी। कुछ ना दे रखा हो तो मान के चला जाता है कि इट इज फ्रॉम बैंक। तो 5,000 रुपए का सर मेरा बैंक चला गया, 5,000 रुपए से बैंक की वैल्यू कम हो गई और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई 5,000।
यहां तक क्लियर हूं कितना? नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। मैंने गुड्स परचेज किए, हाँ जी, लायबिलिटी मैंने किसी से उधार लिया क्या? गुड्स परचेज किए तो उधार लेके किए हैं? नो सर। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ उधार लेके किए। तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी तो चेंज नहीं होगी, लायबिलिटी तो एज इट इज ही रहेगी। क्या चेंज हो जाएगा? सर कैश से लेस होके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने सर जैसे फर्नीचर लिया था वैसे ही गुड्स लिए। अब गुड्स को एक खास नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड स्टॉक। तो मैंने सर 5,000 रुपए के गुड्स भी परचेज कर लिए और मैंने ये पैसा बैंक में से दिया 5,000 रुपए, ठीक है। अब ये वाले गुड्स मैंने बेच दिए 7,000 रुपए के, 7,000। लायबिलिटी साइड पर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अभी बात करते हैं No, पड़ेगा sir. या नहीं पड़ेगा। अभी 2 मिनट रुक जाना। मैंने गुड्स कितने के बेचे? 7,000 के। 7,000। तो मान लो मेरे पास 7,000 रुपए आ गए, लेकिन गुड्स थे कितने के? 5,000। तो 5,000 रुपए के माइनस हो जाएंगे गुड्स। मेरे पास गुड्स तो 5,000 के ही थे ना, तो गुड्स तो 5,000 रुपए से माइनस होंगे या जितने के थे उससे माइनस हो जाएंगे। बट मनी दैट आई हैव रिसीव्ड इज 7,000। सो पॉइंट इज बाकी 2,000 क्या कहलाएगा? सर प्रॉफिट कहलाएगा, कैपिटल में। एसेट हो गया ना, प्रॉफिट। इसे हम कैपिटल में अब ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका होगा? सर बिजनेस का। हमारा साहिल बिजनेस ट्रेडर्स। का। साहिल ट्रेडर्स। हाँ, बिजनेस का। लेकिन यार बिजनेस का एक्चुअली ओनर कौन है? साहिल। साहिल। और साहिल के पैसे को मैं क्या बोलता हूँ? इज्जत देनी है यार, ओनर है। कैपिटल। कैपिटल। तो मैं ये कहूंगा कि जो कैपिटल थी यार उसमें ना 2,000 रुपए ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए? क्योंकि अब मुझे साहिल को 20,000 प्रॉफिट हुआ साहिल का। हाँ, मुझे बिजनेस को साहिल के 20,000 रुपए जो उसने लगाए थे वो देने हैं, प्लस साहिल के जो बिजनेस की वजह से प्रॉफिट हुआ 2,000 का, वो भी उसी का ही है, वो भी मुझे उसी को देना है। यहां तक समझ में आता है इतना? सर प्लीज एक वेरी लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ओके, माय पॉइंट इज कि मैंने स्टॉक बेचा 5,000 रुपए का। आई हैव सोल्ड द स्टॉक वर्थ ₹5,000 फॉर ₹7,000। 5,000 की चीज खरीदी थी, 7,000 में बेच दी। पॉइंट इज ये 2,000 रुपए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट किसका है? किसका होगा ये प्रॉफिट? बिजनेस का? सर हाँ, साहिल ट्रेडर्स। साहिल ट्रेडर्स का। अब साहिल ट्रेडर्स का एक्चुअल ओनर कौन है? साहिल। साहिल। तो इसका मतलब ये वाला पैसा, ये प्रॉफिट का पैसा किसको मिलना चाहिए? साहिल ओनर। साहिल। साहिल ट्रेडर अपने पास कुछ नहीं रखता। साहिल ट्रेडर ऐसा बंदा है जिससे पैसा मिला, जिसका पैसा दिया, उसको मुंह माया से कोई मतलब नहीं है। जो पैसा बचेगा वो ओनर को पकड़ा देगा। ईमानदार बंदा है। तो जो पैसा बच गया, जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट बच गया, वो साहिल का है। अब साहिल का पैसे को मैं किस नाम से लिखता हूं? ओनर का पैसा तो कैपिटल में ऐड। ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, ओनर का पैसा मैं किस नाम से लिखता हूं? सर कैपिटल के नाम से। तो मैं क्या करूंगा? मैं कैपिटल में 2,000 रुपए ऐड करूंगा। यहां तक क्लियर हूं? अब बोलो। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, यहाँ तक तो सर क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब जरा इसको एक लाइन खींच के इधर कर देते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना यार, अब तो सिंपल टोटल निकाल लो। टोटल किस चीज का? सर 20,000 ये रही कैपिटल, 2,000 ऐड हुए थे,
टोटल हो गया 22,000। सर बैंक लोन 20,000 है, इसमें तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो प्लस 20,000 इज इक्वल टू, हाँ जी सर, अब यहाँ पे देखो कैश में 20,000 थे, 8,000 माइनस हो गए, बच गए 12,000। बैंक में 20,000 थे, 8,000 प्लस हुए 28,000। सर 10,000 माइनस हो गए 18,000, 7,000 प्लस हो गए सर 25,000। 25,000। 5,000 का फर्नीचर था सर, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, प्लस 5,000। सर स्टॉक में 5,000 ऐड हुआ था, 5,000 माइनस हो गया था, तो ये तो जीरो हो गया। अब जरा इसका टोटल देखो 42,000, चेक करो ये टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है? So 37,000. 47? 32. 42 आ रहा है सर। 42,000 42,000 सर। 42 इक्वल ठीक है, इक्वल है। ये ध्यान रखना यार, ये जो टर्म है ना इक्वल, ये हमेशा वैलिड होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी, इस चीज को कहते हैं ड्यूल कंसेप्ट, लेकिन ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं लेके जा रहा, फिलहाल सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन तक रखा है। ये 6 ट्रांजैक्शंस बड़े अच्छे से एक बारी चाहो तो रिवाइज कर लो, देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि ये 6 ट्रांजैक्शंस से ही हम लोग आगे लास्ट चैप्टर तक करेंगे। इन्हीं 6 ट्रांजैक्शन से मैं आपको कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, अकाउंट्स बनाना, जर्नल एंट्री करना और उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। सो आज का लेक्चर एक बार ही देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो मुझे ये बता दो कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, मजा आया या नहीं आया? हेलो सर। बढ़िया सर। बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया था सर। सर फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंट्स का सिलेबस कहाँ तक आएगा? अकाउंट्स का सिलेबस आपका फाइनल अकाउंट्स तक है फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, जो 11th का था वही, मतलब सारा ऑलमोस्ट। नहीं 11th से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 11th में आप लोगों ने IFRS वगैरह नहीं पढ़ा होता, वो सब चीजें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। दूसरा, आपने 11th के अंदर जो जर्नल एंट्रीज हैं उसके कंसेप्ट बड़े बेकार तरीके से पढ़े हुए हैं, उनको रिफाइन करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे आप लोगों ने याद कर रखा है, एग्जांपल आपको देता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे खाली, लेकिन अगर एडजस्टमेंट एंट्री में दे रखा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे। ये सबने पढ़ा हुआ, याद है सबको? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाता है ना। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में है तो उसको ऊपर दिखा रहे हो, और एडजस्टमेंट में है तो दोनों जगह दिखा रहे हो। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? अच्छा चलो, सर एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ 2 जगह चीजें होती हैं, हमेशा एंट्री 2 होती है, तो उसको 2 जगह दिखाना पड़ेगा। चलो, और ट्रायल बैलेंस में उसके अंदर एंट्री होके आई है तो वहाँ पे सीधा बैलेंस शीट में इसलिए जाता है सर। हाँ, अब एक मिनट, ऑलरेडी एक जगह हो गया, क्योंकि एक मिनट आपने अभी कहा कि सर एंट्री होकर आई है, तो वो एंट्री बताओगे कौन सी होकर आई है? कौन सर? ट्रायल बैलेंस में। हाँ, जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हो, इसका मतलब एंट्री होकर आई है, तो वो एंट्री क्या है? नाउ इसी वजह से यार मैं कहता हूं हम लोग जो है ना किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रट लेते हैं, बट उसको समझने की कोशिश कम करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट समझना है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते होंगे कि सर हमारी बैलेंस शीट मैच होती थी, लेकिन आप में से शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये कहे कि सर मेरी बैलेंस शीट हमेशा मैच होती थी, चाहे मेरा प्रॉफिट का आंसर गलत आए, और मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज को। मेरा प्रॉफिट का आंसर गलत होगा, आई टोटली एग्रीड,
बट मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, मुझे टोटल तक करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको अकाउंट्स एक्चुअल में समझ में आएगा। अभी तक हम लोग सिर्फ कुछ चीजें याद करके आते हैं, कुछ चीजें जस्ट वी आर यू कैन से वी जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नॉट द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पर आप लोग मीनिंग क्लियर करो। चलो, आई थिंक आपका टाइम हो गया है शायद। तो कितना टाइम हुआ है यार? 10 बजने वाले। आपका नेक्स्ट 9:55. 9:55. Okay. Rupam ma'am, are you there? Yes, sir. Rupam ma'am, please take the attendance. So. Yeah, I have already downloaded Okay. it. Tina, you have written closing account to trading account. That entry is incorrect. सही नहीं है. And second thing, आप लोग मुझे अगर कोई रिप्लाई करें तो आप अनम्यूट करके दे दिया कीजिए, क्योंकि मैं ये चैट वैट ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ बच्चे। चलो, anyway, meet you on 2nd, I think, 2nd October. हेलो सर। यस सर ये बताइए, आप जो यार लेक्चर है ये आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कब करेंगे, अपलोड कब करेंगे? सॉरी, दोबारा रिपीट करो अपना क्वेश्चन। सर अभी जो ये लेक्चर आपने दिया है सर, ये आप माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन पे अपलोड कब करेंगे ताकि हम लोग दोबारा देख सकें? यार Harsh, sir, it has been already recorded. Harsh, it has been already recorded. Okay, तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन करोगे इस क्लास में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मैं जितने भी आपके ब्रीज कोर्स का क्लास है उसको डाउनलोड करके आपकी क्लास ग्रुप में आई कैन शेयर। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन करो आप, then go to BBA1 morning shift, then go to general and you can download any of the class, सारे recorded है। और I will also upload it in YouTube। जितने भी आपके ब्रीज कोर्स के जितने भी सेशन हुआ है, it may be related to your syllabus or not, all are downloaded in YouTube, so you can directly visit our channel of BBA1 morning shift and can get all the videos of the lectures. Okay, and this is for everyone. Okay. सर का क्लास भी आज मैं वीडियो में YouTube में अपलोड कर दूंगी। सर यस सर, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है क्या? मतलब साइंस है या फिर ब्रिज कोर्स में सब कवर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज कोर्स में आप 3 क्लासेस अटेंड कर लो, आप इतने रेडी हो जाओगे कि क्लास में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा। बाकी क्लास में आपको करवाया ही जाएगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3 क्लासेस प्रॉपर अटेंड करना। जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊँगा, वही 6 ट्रांजेक्शन्स लेके मैं आपको फाइनल अकाउंट्स तक ले आऊँगा, तो आपको एक गो थ्रू हो जाएगा। थैंक यू सर। Don't worry at all. Even I was from humanities background and I did my graduation in economics and completely in humanities. But when I joined my MBA, I was so apprehensive. I was so afraid of accounts. मुझे समझ नहीं आती थी accounts. But when I started learning it, and it is really easy. It's not very tough like trigonometry and other mathematics. You just have to go through the base and foundation of it. And definitely sir will help you out. First आप foundation जो basic terminology है वो आप समझो। Don't जैसे सर ने बोला रट्टा मत मारो, क्योंकि रट्टा मारोगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा। Don't read accounts for exam, क्योंकि आप MBA भी करोगे, MBA में भी आएगा business accounts. So that's why आप अगर अभी समझ लो each and every step, क्यों ये क्यों होता है, ये क्यों ऐड करते हैं, right? Why this portion is added as liability? Why this in asset? ये सारी चीज अगर आप समझ जाओगे ना, you don't have to mug it up, and it will also help you in your masters, right sir? Right ma'am, definitely. Ma'am, when will you post the video of sir? Can you please share the link in the group? Yes. मैं आज मेरा क्लास है अभी 12-1 बजे तक। आफ्टर डेट जैसे कल मैंने शेयर किया था कुछ वीडियोस, नैन्सी मैम ने भी किया है कुछ वीडियो का लिंक। सो लाइक दैट आई विल पोस्ट इट बाय 1 o'clock. ओके, 1 बजे के बाद मैं पोस्ट करूंगी। ओनली आफ्टर दैट आई विल बी फ्री। ओके, थैंक यू सो मच राकेश सर। Thank you ma'am. We have a guest session now from 10 o'clock. Okay ma'am, I'm leaving ma'am. Thank you. Okay, thank you so much Rakesh sir. Thank you so much. Thank you ma'am.
Okay, students, I have already downloaded the attendance. So please leave from this class and you can join the other class starting from 10 o'clock.